أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وشفيع المذنبين النبي المؤيد ورسول المسدد مولانا أبي القاسم المحمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. لعنة الله على أعدائه الأجمعين. آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، قرآن کریم کی سورہ حجرات کی 14ویں آیت کا پہلا حصہ، کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ یہ بدو عرب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اسلام لے آئے اور ایمان ابھی ان میں داخل نہیں ہوا. پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ کے حوالے سے اس بات کا واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ دین کا مطالبہ ایمان کا ہے. صرف زبان سے کلمہ شہادت کو دوہرا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان تو وہی کمال حاصل کر سکتا ہے کہ جس نے اس دین کو اپنے دل سے تسلیم کیا ہے. اور ایمان کو قوی بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو پورے دلائل کے ساتھ دل کی گہرائی سے تسلیم کریں، محض اسے زبانی اعتبار سے نہ دہرائیں بلکہ اسے سمجھ کر اس پر یقین رکھیں. اور اسی موضوع کے حوالے سے پہلی محرم سے ہماری گفتگو جاری ہے. آج رسالت کے موضوع پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، شیعہ اثنا عشری اس بات پر متفق ہیں کہ بنی نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے اور انہیں کمال تک پہنچانے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء مبعوث کیے. پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان قرآن کریم میں کئی آیات کے حوالے سے کیا. سورہ نساء کی 165 آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے کہ جو بشارت دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، تاکہ لوگوں پر اپنی حجت کو تمام کر سکیں. پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. اور پروردگار نے اس ہدایت کی ذمہ داری کو اتنی خوبصورتی سے نبھائی ہے کہ پروردگار نے سب سے پہلے اس روئے زمین پر ہدایت دینے والے بھیجے. ابو البشر آدم علیہ السلام خدا کے بھیجے ہوئے پہلے پیغمبر تھے. پروردگار نے بہترین انتظام کیا تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ پروردگار جب ہم اس روئے زمین پر آئے تھے تو ہماری ہدایت کے لیے کوئی موجود ہی نہیں تھا. مختصر یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خداوند کریم نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے، آدم سے لے کر قاسم تک
हर नबी एक ही दीन यानी इस्लाम लेकर आए। परवरदिगार कुरान में कहता है कि इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी खुदा के नजदीक बेहतरीन दीन दीन इस्लाम है। और हर नबी आदम से लेकर कातिम तक हर नबी ने इसी दीन की तबलीग की थी। खुदावंद करीम कुरान मजीद की सूरे में इरशाद फरमाता है, सूरह शोरा की 13वीं आयत की, जहां परवरदिगार कहता है कि हमने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया है कि जो रास्ता नूह अलैहिस्सलाम को और ए पैगंबर आपको वही की है, जिसकी वही इब्राहिम और मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को की है, कि दीन को कायम करे और उसमें तफरीके न पैदा करे। गोया परवरदिगार ऐलान कर रहा है कि एक ही दीन का पैगाम लेकर, एक ही मजहब लेकर इस रूए जमीन पर तमाम अंबिया आए थे। हर दौर में हर नबी मुसलमान था। खुदावंद करीम कुरान मजीद में नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुसलमान होने का ऐलान कर रहा है कि परवरदिगार कहता है कि वो माँ काना इब्राहिम यहूदियों वला नसरानियों, यानी इब्राहिम ना तो नसरानी है यानी नसारा में से है, ना यहूद है, वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमन, यानी आप एक हक परस्त मुसलमान हैं। खुदावंद करीम का कुरान इस बात की गवाही देता है कि नबी याकूब अलैहिस्सलाम की जब मौत आई है और परवरदिगार आलम इस वाक़े का जिक्र कर रहा है सूरह बकरा की 133 आयत में, कि परवरदिगार कहता है कि जब याकूब की मौत आई थी तो अपने बच्चों को जमा किया था और सवाल किया था कि बताओ तुम मेरे बाद किस खुदा की इबादत और इताअत करोगे। तो बच्चों ने कहा था कि हम उसी खुदाए वहदहुल ला शरीक की इबादत और इताअत करेंगे कि जिसकी इबादत और इताअत आपने और आपके आबा व अजदाद इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक ने की है। और फिर उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं, वो नहनु मुस्लिमून, यानी बात वाज़े हो गई कि हर नबी मुसलमान था कि जो दीन इस्लाम पर गामजन था, और हर नबी एक खुदाए वाहिद की इबादत की दावत दिया करता था। शिया इस्ना अशरी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नबी ईसा अलैहिस्सलाम भी मुसलमान थे और उन्होंने इसी खुदाए वहदहुल ला शरीक की इबादत और इताअत की लोगों को दावत दी थी। कुरान मजीद में खुदावंद करीम इरशाद फरमाता है कि ईसा ने हरगिज इस बात का इनकार नहीं किया कि वो खुदा के बंदे हैं, और ना उनके मुकर्रबीन फरिश्तों ने इनकार किया। परवरदिगार कुरान करीम में कहता है कि किसी इंसान के लिए सजावार नहीं कि खुदा उसे किताब दे, उसे हुक्म दे, उसे नबी मुकर्रर करे और फिर वो दूसरों को इस बात की दावत दे कि खुदा को छोड़कर मेरी इबादत और इताअत करो। यानी हमारा यह अकीदा है कि नबी ईसा अलैहिस्सलाम क्रिश्चियनिटी लेकर नहीं आए थे, बल्कि वही दीन इस्लाम जो खुदा का पसंदीदा दीन है, जिसकी इब्तिदा आदम से हुई है, वही दीन लेकर इस दुनिया में आए हैं। हर नबी ने इसी खुदाए वहदहुल ला शरीक की इबादत और इताअत में अपनी जिंदगी को गुजारा है, और खुदावंद करीम ने मुख्तलिफ अंबिया की इबादत का जिक्र कुरान करीम में किया है। सूरह ताहा की 14वीं आयत की, जिसमें इरशाद बारी ताला हो रहा है, परवरदिगार उस लम्हे का जिक्र कर रहा है कि जब खुदा ने अपने कलीम से कलाम किया था। परवरदिगार कहता है कि मैं अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, तुम मेरी इबादत करो और मेरी याद में नमाज पढ़ो। यानी बात वाज़े हो गई कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को भी नमाज का हुक्म था, वो भी एक खुदा ला शरीक की इबादत किया करते थे। परवरदिगार आलम ने सूरह मरियम में जब नौमौलूद नबी ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि किस तरह उन्होंने अपनी मां की आगोश से मां की तहारत की गवाही दी, अपने
नबी होने का ऐलान किया, तो उसी वक्त उन्हीं आयात के दरमियान परवरदिगार इस बात से आगाही दे रहा है कि नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि खुदा ने मुझे बाबरकत बनाया है कि चाहे मैं जहां रहूं, और खुदा ने मुझे वसीयत की है कि ता हयात उसकी नमाजें पढ़ूं और ज़कात अदा करूं। जनाब मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र जब परवरदिगार सूरह मरियम में करता है, तो यहां उस लम्हे का जिक्र भी आता है कि जब बीबी मरियम घबरा रही हैं कि हाथ में नौमौलूद बच्चा है, तो खुदावंद करीम कहता है कि जब तुम शहर में चली जाना तो कहना कि तुम चुप्पी के रोजे से हो। यानी रोजा हर नबी के कौम पर खुदा ने वाजिब किया है। सूरह बकरा में परवरदिगार इसका ऐलान करता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हमने तुम पर रोजे को इसी तरह वाजिब किया है कि जिस तरह तुमसे पहले वाले कौम पर वाजिब किया, कि हो सकता है तुम साहिब तक़वा हो जाओ। परवरदिगार आलम ने सूरह हज में नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि जब खाने काबा की तामीर हो चुकी है, तो हुजरत का ऐलान हो रहा है कि ए इब्राहीम, हज की दावत आम दो ताकि लोग पैदल चलकर आए और कमजोर सवारियों पर भी सवार होकर आए। ये इस बात का ऐलान है कि हज हर नबी पर वाजिब था। परवरदिगार आलम ने सूरह हूद में नबी शुएब की कौम का जिक्र किया है, और खुदावंद करीम ये बता रहा है कि किस तरह नबी शुएब की कौम ने आपको तंज दिया और सवाल किया कि ऐ शुएब, कि आपकी नमाज ये सिखाती है कि हम अपने आबा अजदाद के दीन को छोड़ दें और हम अपने अमवाल को अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च न करें। यानी ये बात इस आयत से वाज़ेह हो रही है कि परवरदिगार आलम ने इन पर नमाज और ज़कात को वाजिब किया था। गोया ये बात वाज़ेह हो गई कि हर नबी ने एक ही पैगाम लोगों तक पहुंचाया, एक ही खुदा की इबादत और इताअत का जिक्र किया और दावत दी अपने कौम को। तो फिर फर्क क्या है? तो हमारा यह अकीदा है कि परवरदिगार आलम ऐसा खालिक है कि जिसने अपने मखलूक की हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया मबूस किए, जिसमें 313 रसूल भी हैं। और अंबिया और रसूल में फर्क यह है कि अंबिया पर वही नाजिल हुई और इन्हें तबलीग का हुक्म नहीं था, यानी जो सुनने के लिए आमादा थे वही इलाही उन्हें सुना दिया करते थे। मगर रसूल वो है कि जिन्हें तबलीग का हुक्म था, यानी इनके लिए ये हुक्म था कि ये उठकर खड़े हों, जुस्तजू करें, तकलीफें उठाएं और ये कार्य रिसालत को अंजाम दें। और परवरदिगार आलम ने 5 उलुल अज़्म अंबिया इस रुए जमीन पर भेजे। परवरदिगार आलम ने अंबिया इस रुए जमीन पर जब भेजे तो हर नबी को उसके इलाके के लिए, उसके घराने के लिए, बाज को अपने शहर के लिए मबूस किया था। यानी उनका अहाता, उनका घर या उनका शहर, उनका करिया था। मगर ये उलुल अज़्म अंबिया वो थे कि जिनकी नबूवत मशरिक से लेकर मगरिब तक फैली हुई थी, और ये वो अनबिया थे कि जिसे परवरदिगार आलम ने साहिबे शरीयत बनाया था। यानी दीन इस्लाम वही अकीदे के साथ इस दुनिया में आया है। आदम से लेकर कातिम तक परवरदिगार आलम ने अपने अंबिया के जरिए से एक अकीदे की दावत दी। यानी तमाम अंबिया ने एक खुदाए वाहिद की इताअत और इबादत की दावत दी। कयामत से इन्हें आगाह किया, अपनी रिसालत और आका नामदार की रिसालत से आगाह किया। तमाम अंबिया ओहदे नबूवत में पहुंचे कि जब आपने
अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार किया। इंशाअल्लाह खुदा की अगर मर्जी शामिल हाल हो तो ये मौजू तफसीली एतबार से इमामत के हवाले से इंशाअल्लाह मुख्तसर ये कि परवरदिगार आलम ने हर नबी को एक ही अकीदे को आम करने के लिए भेजा, मगर यहां शरीयतों को यानी तरीक़े इबादत को तब्दील किया गया। परवरदिगार ने अपने अंबिया के जरिए से 5 उलुल अज़्म पैगंबरों के जरिए से शरीयतों को भेजा, क्योंकि जैसा जमाना था, जैसे इंसान की साख्त तब्दील हुई, जैसे इंसान मुख्तलिफ बनता गया, वैसे वैसे इंसान के ताबे परवरदिगार आलम ने अपनी शरीयत को तब्दील किया। बच्चों को मिसाल देती हुई चलूं, तारीख इस बात की गवाही देती है कि कौम आद के हवाले से ये मिलता है कि उस जमाने में लोग इतने खवी थे कौम आद के जमाने के कि अगर सामने पहाड़ आ जाता तो आसानी से उसे हटाने की कुव्वत रखते थे। दरख्तों को एक लम्हे में उखाड़ कर फेंक दिया करते थे। हत्ता कि इनमें इतनी कुव्वत थी और इतने दराज थे कि एक एक इंसान कौम आद का 70 फुट का था। अब जरा तस्वुर कीजिए कि हमारे जमाने में ज्यादा से ज्यादा इंसान अगर दराज होता है तो 7 फुट का इंसान देखने में आता है, मगर कौम आद में हर इंसान कम से कम 70 फुट का था। तो जैसे जैसे परवरदिगार आलम ने इंसान के अंदर तब्दीलियां लाई, वैसे वैसे उसके लिए शरीयतों को तब्दील किया गया। सुभान अल्लाह। और हमारा यह अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए नामदार वो हैं कि जिनकी शरीयत जामे निजाम हयात है, कि जिसे ता क़यामत तक के लिए परवरदिगार आलम ने हर इंसान पर नाफिज किया है, यानी ता क़यामत तक ये शरीयत तब्दील होने वाली नहीं है। हमारा यह अकीदा है कि आप फ़ख्र अंबिया हैं, आप आखिरी नबी भी हैं, आखिरी रसूल भी हैं, यानी खातिमुन नबीयीन भी हैं, और आप आखिरी रसूल भी हैं। और परवरदिगार आलम इसका ऐलान कुरान करीम में करता है कि कुदरत का ऐलान हो रहा है कि मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है, बल्कि वो रसूल खुदा है और आखिरी नबी है। यानी आका नामदार वो है कि जो आखिरी नबी है, मगर हमारा यह अकीदा है कि परवरदिगार ने आपके नूर को सबसे पहले खल्क किया। हर नबी ने आपके आने की बशारत दी है, इसलिए कुरान बढ़कर इस बात की गवाही देते हुए कहता है कि नबी या उम्मी पर जो ईमान लाते हैं, कि जिसका जिक्र वो अपनी किताब तौरात और इंजील में पाते हैं, वो फलाह पाएंगे। यानी गोया परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है कि इस नबी के आने की खबर हर नबी ने दी है। और यही वजह है कि मदीना मुनव्वरा में कसरत से यहूद आकर बसे थे, क्योंकि उन्हें इंतजार था, तो आखिरी नबी के आने का इंतजार था। मुख्तसर ये कि हमारा ये अकीदा है कि ये नबी वो है कि जिनके नूर को परवरदिगार आलम ने सबसे पहले खल्क किया। आप उस वक्त भी नबूवत के मनसब पर फायज थे कि जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और रूह के दरमियान थे। खुद आपकी ज़बानी आकाए नामदार इस बात को कहते हुए नजर आते हैं। इब्ने अब्बास से यह रिवायत मरवी है कि आकाए नामदार ने कहा कि मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम मिट्टी और रूह के दरमियान थे। यह और बात है कि जब 40 साल के आप हुए, 40 साल तक सबसे पहले परवरदिगार का हुक्म था कि लोगों को अमली दर्स दिया जाए। 40 साल तक आपने अपने किरदार का लोहा इस तरह मनवाया कि मक्के के हर फर्द को यह बात वाज़ेह थी कि आप जैसा कोई सादिक नहीं है, आप जैसा कोई अमीन नहीं है।
اور جب آپ صادق الامین کا لقب پا چکے اور 40 سال کی عمر پر پہنچ چکے تو خداوند کریم نے اپنے نبی کو رسالت کے اعلان کا حکم دیا۔ شیعہ اثنا عشری اس بات پر متفق ہے کہ جب آقا نامدار پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تھی اور سورہ علق کی 5 آیتیں بظاہر اس دنیا میں آپ پر نازل ہوئی اور آپ کو رسالت کا اعلان کا حکم ہوا، جبرائیل کو سامنے دیکھا تو آپ گھبرائے نہیں، بلکہ جبرائیل آپ کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب آیتوں کو پیش کیا گیا تو آپ کو پڑھنے کے لیے تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ آپ علم غیب کے حامل ہیں۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ خدا وہ ہے کہ جو علم غائب رکھتا ہے اور وہ اپنے اس علم کو لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا سوائے ان برگزیدہ رسولوں کے کہ جسے اس نے چن لیا ہے۔ گویا پروردگار عالم اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ بعض انبیاء کو خدا نے علم غائب عطا کیا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جو لوح محفوظ کی تحریروں کو پڑھا کرتے تھے، انہیں آیات قرآن پڑھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہ وہ پڑھنے لکھنے سے نعوذ باللہ من ذالک معذور نہ تھے۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، مگر ہم شیعہ اثنا عشری اس بات کے متقد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوح محفوظ کی تحریروں کو بھی پڑھا کرتے تھے، آپ علم غائب کے حامل تھے، مگر مشیت الہی یہ تھی کہ پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا کہ بظاہر آپ نے رسالت کے اعلان سے پہلے کوئی پڑھائی نہیں کی، آپ اس لیے کیونکہ خدا نہ خواستہ کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آپ نے قرآن کو خود اپنے آپ تحریر کر لیا، کیونکہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بعض مشرکین نے آپ کو مجنون کہا، ساحر کہا، کاذب کہا، کبھی نعوذ باللہ یہ کہا کہ کسی عجمی سے آپ نے علم حاصل کیا، تو قرآن بڑھ کر کہتا ہے کہ عجمی کی زبان عربی نہیں، مگر کسی نے یہ کہنے کی ہمت نہیں کی کہ آپ نے خود اس قرآن کو لکھ لیا ہے۔ یہ مشیت الہی ہے۔ مختصر یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں۔ معصوم وہ کہ جسے پروردگار عالم اپنی قدرت سے ہر خطا سے ہر گناہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر نبی معصوم نہ ہو تو خدا ان کی اتباع کا، اطاعت کا ہرگز ہمیں حکم نہ دے۔ اور بعض اوقات بعض لوگ جو انبیاء کے حوالے سے گناہ سے انہیں نسبت دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے مگر گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ شیعہ اثنا عشری یہ کہتے ہیں کہ انبیاء سے بعض اوقات ایسا عمل ہو جسے ترک اولا کہا جاتا ہے، یعنی ایسا کام کہ جو کم بہتر ہو، جس کی اچھائی کم ہو مگر وہ گناہ نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر نبی کو معجزہ عطا کیا، جیسا زمانہ تھا ویسے قدرت نے اس نبی کو معجزہ عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کہ جہاں جادو اور سحر اوج پر تھا، تو قدرت نے موسیٰ کو اپنے حجت کو ایک ایسا معجزہ عطا کیا، ید بعضا اور عصائے موسیٰ ایک ایسے معجزے تھے کہ جس کا جواب فرعون کے کسی ساحر کے پاس نہیں تھا، کسی جادوگر کے پاس نہیں تھا۔ موسیٰ کے عصا نے تمام اژدہوں کو نگل لیا۔ مختصر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم کیمیا اوج پر تھا، یعنی کیمسٹری اوج پر تھی، تو پروردگار عالم نے اپنی حجت کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ یہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ عرب کے بدو
अपने जबान पर गुरूर किया करते थे, वो बात करते थे तो काफे मिलाकर बात किया करते थे। तो खुदावंद करीम ने कुरान नातिक और कुरान सामित को मौजूजा बनाकर भेज दिया कि जिसका परवरदिगार ऐलान करते हुए कहता है कि अगर जिन्न और इंस मिलकर भी इस कुरान जैसी कोई किताब लाना चाहे तो ये नामुमकिन है, अगरचे इसमें ये एक दूसरे की मदद ही क्यों ना करें। और परवरदिगार आलम इस बात का ऐलान कर रहा है कि ऐ मोहम्मद, ये जो इस कुरान पर अकीदा नहीं रखते, शक करते हैं, इनसे पूछो कि अगर इसका एक सूरे के बराबर का जवाब ये लेकर आए और खुदा के सिवा दूसरों को अपना गवाह लेकर आए। यानी बात वाज़ेह हो गई कि कुरान एक ऐसी किताब है जो बेमिसाल है। और बहुत ही अहम तरीन मौजू ये कि परवरदिगार आलम ने जब कुरान को नाजिल किया है तो इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुदावंद करीम ने खुद ली है, जिसका जिक्र परवरदिगार ने इस कुरान में किया कि खुदा ने ही इस कुरान को नाजिल किया है और उसकी हिफाजत भी वही करेगा। तमाम शिया इस्ना अशरी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुरान में कोई तहरीफ नहीं हुई। बाज़ औक़ात लोग हम पर यह इल्जाम लगाते हैं, मुखालिफीन ये कहते हैं कि शिया इस्ना अशरी तहरीफ कुरान के कायल हैं, नौजुबिल्ला उनके पास 40 पारे का कोई कुरान है। हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुरान में कोई तहरीफ नहीं हुई। जो आका नामदार पर नाजिल हुआ ता कयामत तक वही कुरान बाकी रहने वाला है। परवरदिगार ने अपनी नबी को कुरान नातिक और कुरान सामित जैसे मौजज़े अता किए, मगर अफसोस कि दुनिया वालों ने कुरान नातिक को छोड़ दिया। हदीस सकलैन की जहां आका नामदार फरमाते हैं कि इन्नी तारकुम फीकुम सकलैन व किताबल्लाहि व इत्रतिही, यानी मैं तुम में दो गिरा कद्र चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। इन दोनों से मुतमस्सिक रहना, क्योंकि ये दोनों आपस में उस वक्त तक मिली हुई होंगी जब तक मुझसे हौज़े कौसर पर मुलाकात ना कर ले। मगर अफसोस की दुनिया ने कुरान नातिक को छोड़ दिया, अहले बैत अत्हार को छोड़कर दर दर की ठोकरें खाई। और यही वजह है कि अहले बैत अत्हार पर रोज़े आशूरा मुसीबत का अंबार तोड़ दिया गया। अज़ादारान सैयद शुहदा रोज़े आशूरा रसूल अल्लाह के चमन को इस तरह ताराज किया कि जिसकी मिसाल मौजूद नहीं है। दिल चाहता है कि आज उसकी शहादत का जिक्र हो जाए कि जिसकी शहादत भी बेमिसाल है, वो कासिम की जिसके बदन को मिसले फूल इस तरह रोंदा गया कि आपके बदन के टुकड़े मैदान करबला में बिखर के। अज़ादारान सैयद शुहदा शहजादे कासिम वो शहीद हैं कि जो बचपन में ही यतीम हो गए थे। जब कासिम पर यतीमी आई थी तो उम्र महज 2.5 साल की थी। मौला हसन शहीद हुए थे तो कासिम की कफालत मेरे मौला हुसैन ने ले ली थी। ऐसी परवरिश कासिम की मौला हुसैन ने की थी, इतने नाजो नाम से पाला था कि आप नाजुक बदन भी थे, नाजुक मिजाज भी थे। मौला हुसैन आपको बहुत चाहते थे। तारीख लिखती है कि जब वो वक्त भी आया कि रोज़े आशूरा तमाम अंसार और अखरबा एक एक करके जामे शहादत नोश कर रहे थे, तो कासिम की माँ हसन की बेवा ने अपने बेटे को बुलाया, कहा कासिम तमाम जामे शहादत नोश कर रहे हैं, क्या बात है कि अभी आप आज़िम जंग न हुए। बीबी कहती है कासिम खबरदार कहीं ऐसा न हो कि शहजादी जहरा के सामने रोज़े क़यामत में शर्मिंदा हो जाऊं। कासिम मेरा वाली मौजूद नहीं है, ख्याल रहना कि माँ को सुर्खरू तुम्हें करना है। कासिम तड़प गए, कहा अम्मा चचा जंग की इजाजत नहीं देते। वो वक्त भी आया कि जब माँ ने आका हसन की तावीज का कासिम से जिक्र किया, कहा बाबा ने आखिरी लम्हात में वसीयत की थी कि जब सबसे बड़ी मुसीबत आ जाए तो इस तावीज को खोल कर देख लेना।
बेटा कासिम, इससे बड़ी क्या मुसीबत होगी कि जहरा का लाल नरगे आदा में घिर चुका है। अजादारों, दिल चाहता है कि उम्मे फरवा को सलाम किया जाए कि ए बीबी, आपकी वफा पर करोड़ों हाथ सलाम, आपके जज्बे पर करोड़ों हाथ सलाम। ए बीबी, हम माओ को भी सलीका सिखा दीजिए कि किस तरह हम औलाद की तरबियत करें। कहा जाता है कि जैसे ही कासिम की माँ ने उस तावीज का जिक्र किया, तावीज को खोला गया, यहाँ कासिम ने देखा कि गोया ये जाविदाना जिंदगी का परवाना है। बाप की तहरीर थी, चचा के नाम थी। का मौला हसन ने अपने भाई को एक वसीयत लिखी थी, कहा था बे भाई हुसैन, जब नरगे आदा में रोजे शूरा घिर जाना, करबला में मेरी जानिब से मेरे बेटे को कुर्बान कर देना। बस फिर क्या था, कासिम ये अपने मौत का परवाना लिए हुए चचा के करीब गए। खुशी की इंतहा न थी। यहाँ मौला हुसैन ने जब अपने भाई का तहरीर कद देखा, आंखों से लगाए आश्क जारी हो गए। कासिम को आज़िम जंग किया। वो वक्त भी आया कि जब कासिम सवार हुए, मैदान वेगा में गए, अरज़क मलऊन और उसके दो बेटों को फिनार किया। अश्किया में तहलुका मचा। मलऊनों ने आवाज बुलंद की कि ये हैदर कर्रार का पोता है, चारों तरफ से इसे घेर कर मारा जाए। फिर क्या था कि कहीं से तलवारें तो कहीं से तीर बरसे। वो वक्त भी आया कि जब एक गुर्ज कासिम के नाजुक बदन में आपके रीढ़ की हड्डी में धंस गया। बस यहाँ कासिम घोड़े पर संभल न सके, घोड़े से जमीन पर आने लगे। चचा को आवाज इस्तिगासा दिया। जैसे ही ये आवाज मेरे मौला हुसैन के कानों तक पहुंची, मौला हुसैन एक जानिब से दौड़े, आका अब्बास दौड़े। मौला हुसैन और आका अब्बास को एक साथ आते देखा, दुश्मनों में तहलुका मचा। इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। मैंने बहुत आसानी से कह दिया। जरा तसव्वुर कीजिए कि ये कासिम वो शहीद है कि जिसका लाशा जिंदगी में पामाल हो गया था। जब मौला हुसैन पहुंचे हैं मैदान वेगा में, देखा कासिम का लाशा नजर नहीं आता। मेरे मौला ने आवाज दी, कहा बेटा कासिम आवाज दो। कासिम खामोश है। कहा जाता है कि दूसरी मर्तबा मेरे मौला ने आवाज दी, कहा बेटा कासिम आवाज दो ताकि मैं तुम तक पहुंच। कासिम खामोश है। वो वक्त भी आया कि जब मेरे मौला हुसैन ने आस्तीन को उल्टा, टीले पर जाकर खड़े हो गए। कहा वक्त का इमाम तुम्हें हुक्म देता है, कासिम आवाज दो। फिर क्या था, तारीख लिखती है, उलमा कहते हैं कि यहाँ कासिम के बदन के टुकड़े हवा में परवाज करने लगे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। बस फिर क्या था, मेरा मौला हुसैन ने अबा का दामन बिछाया। कासिम के तकसीम शुदा बदन के टुकड़ों को एक माली की तरह चुना कि जो अपने कासिम के बदन के टुकड़ों को मेरे मौला हुसैन ने उस माली की तरह चुना जो अपने गुलिस्तान से फूलों को चुनता है। अपने अबा के दामन में कासिम के टुकड़ों को समेटते हुए मेरे मौला खैमे की जानिब पहुंचे। खैमे में क्या देखते हैं कि कासिम की मां नजर नहीं आती। शहजादी ज़ैनब कहती है, भैया मेरे माँ जो है उम्मे फरमा अभी नशेब में गई है। जब मेरे मौला हुसैन ने नशेब में देखा, क्या देखते हैं कि उम्मे फरमा खुदा की बारगाह में शुक्र का सजदा बजा ला रही है। वो वक्त भी आया कि जब माँ ने अपने बच्चे के लाशे को देखा, न जाने किस तरह माँ ने सब्र किया हो। तारीख लिखते कि मेरे मौला से शहजादी ने उम्मे फरवा ने कासिम के पिराहन को मांगा। कहा मेरे मौला मैं चाहती हूँ कि अपने बेटे का पिराहन मुझे दे दिया जाए। तारीख लिखती है कि शाम गरीबा में तमाम असबाब लुटे, पिराहन भी लुटा, मगर जब इस काफिले को रिहाई मिली, तमाम तबरुकात आए तो कासिम का वो जख्मी पिराहन भी आया जो तार तार हो चुका था, खून में डूबा हुआ था। उम्मे फरवा ने इस तबरुक को संभाला, आका हसन के कब्र पर इस पिराहन को रखा और फरियाद करने लगी, है मेरे वाली, मेरे बच्चे को जिंदगी में पामाल कर दिया गया था। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।